Good morning students. Today we will discuss the topic self-help groups for the poor. Okay, as we are discussing the chapter 3 money and credit, in earlier videos we talk about the loan activities, that how bank create loan. Then we talk about the that loan from formal and informal sector. So what are the formal and informal sector? So today we will talk about the self-help group. Okay, these are also called SHG. So in the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. So what are the informal sources? Means loan from the landlord. Okay, intermediators, these are called informal sector. We can say loan from friends, relatives. So why is it so कि जो पुअर लोग हैं वो अभी भी लोन के लिए क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज है, उन पे डिपेंडेंट है. वाई इट इज सो, ऐसा क्यों? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया. सो फर्स्ट थिंग इज facilities, and banks are not present everywhere in rural areas. There are many villages in India that these villages do not have any bank. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. So अगर कहीं है भी तो what the main problem people face, that there are many type of formalities that can be completed in bank while taking loan from bank, but it is easy to take loan from informal sources. As we saw for Megha, bank loan require proper document and collateral. जैसे कि हमने एक मीन्स मेगा की जो स्टोरी में पढ़ा था ना कि वो अपने हाउस के लिए बैंक लोन ले रही है एंड शी गिव हर हाउस डॉक्यूमेंट्स एंड बैंक गिव. देयर इज नीड ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज. ओके, कलेक्टर मीन्स एनी टाइप ऑफ गारंटी, मीन्स वो अपनी जॉब की जो डिटेल्स है वो देती है बैंक को एज ए गारंटी कि इन केस इफ शी इज नॉट एबल टू रिपे द लोन देन बैंक कैन directly take her income. Okay, so that salary absence of collateral is one of the major reason which prevent the poor from getting bank loan. Absence of collateral means गारंटी. जो पुअर लोग हैं उनके पास जब गारंटी नहीं होती तो दैट इज द मेजर रीजन, ये बड़ा कारण है एक, विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन. प्रिवेंट जो कि उनके रास्ते में एक बाधा बनता है क्या, लोन लेना. ठीक है, means bank need all type of formalities, guarantees to give the loan, but poor people, if they don't have any type of land, house, so they are not able to give any guarantee to the bank. So this is one of the barrier for the poor people to take loan from bank. Informal lenders such as money lenders. So if we talk about the informal sources, as money lender on the other hand know the borrowers personally. जैसे कि रूरल एरियाज में मेनली ये चीज़ें देखने को मिलती है कि लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं. ओके, तो वहाँ जब लोग जानते हैं तो वो उसके बेसिस पे उनको जो भी चीज़ चाहिए, पैसे या अदर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उनको दे देते हैं. तो जो मनी लैंडर इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स, वो एक दूसरे को जानते हैं तो उनको विदाउट एनी गारंटी क्या है, उनको पैसा दे देंगे. एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेक्ट्रल. किसी भी गारंटी के बिना वो मनी लेंडर है वो क्या है, पैसा दे देंगे. द बोरोवर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स. कहते हैं अगर उनको और ज़रूरत पड़ जाती है तो जो बोरोवर्स है, जिसने पैसा लिया है, उधार लिया है, वो अगर उसको ज़रूरत हो तो पहले वाला बिना पे किए भी मनी लेंडर के पास जा सकता है और उनको अगर और पैसे चाहिए तो वो ले लेते हैं. इट हैपन्स इन ऑलमोस्ट रूरल एरियाज. ओके, देन however the money lenders charge very high rates of interest. So what is the basic difference between money lenders and bank? That bank give loan on nominal rate of interest, means at a very low level, low rate of interest,
but money lender charge very high rate interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. और वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं ट्रांजेक्शन का. In recent year, people have tried out some newer way of providing loan to the poor. कि आजकल के कुछ सालों में लोगों ने नए तरीके निकाल लिए हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए. द आइडिया इज टू रिकॉग्नाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप. अब लोगों ने क्या किया है कि जो मेनली ये वीमेंस में देखा जाता है कि लोग क्या है इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, जिनको कि क्या नाम दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. एज अवर टॉपिक इज ऑल्सो सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके, मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, कि जो पुअर लोग हैं वो इकट्ठा होके क्या एक ग्रुप बना लेते हैं छोटा सा. एंड पूल मीन्स कलेक्ट देयर सेविंग, वो अपनी सेविंग है वो इकट्ठी कर लेते हैं. ए टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 and 20 मेंबर्स. तो उनमें क्या है 15 और 20 मेंबर्स होते हैं, यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, के आसपास के लोग हैं, 15-20 लोग इकट्ठा होकर क्या है अपने पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पूल कर लेते हैं, ठीक है. हु मीट एंड सेव रेगुलरली, अब वो क्या है एक दूसरे से, मतलब जब ग्रुप बना लिया तो ऑब्वियसली उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मिलते हैं, और वो क्या है सेव, मतलब उन्होंने ट्रेंड बना लेते हैं कि इतने रुपए उनको क्या है सेव करने हैं. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़. अब लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई 50 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, कि लोग जिसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है वो ज़्यादा सेव कर लेंगे, जिनकी इनकम कम है वो थोड़े कम सेव करते हैं. मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड. अब उनमें से जो 15-20 लोगों ने मिलके जो ग्रुप बनाया है, एंड वन मेंबर फ्रॉम दिस 15-20 people group need money, so he take money from that group to meet their needs. The group charge interest on these loan, but this is still less than what the money lender charge. So ये ग्रुप है, ये भी क्या इंटरेस्ट चार्ज करता है इस पे, बट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लैंडर्स. ओके, after a year or 2 years, if the group is regular in saving, it become eligible for availing loan from the bank. और 1-2 साल में क्या है कि ग्रुप रेगुलर सेविंग कर रहा है और ये एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए. तो लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स. ठीक है, अब ये क्या है, इन लोगों को बैंक से लोन मिल जाता है किस नाम पे कि ये खुद का कोई काम करना चाहते हैं, उसके बेस पे लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग mortgage land, for meeting working capital need, buying seeds, fertilizer, raw materials like tobacco, bamboo and clothes, for housing material, for acquiring assets like sewing machines, land, हैंडलूम्स, कैटल एक्सेट्रा. अब जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बाड़मेर में एक मतलब वीमेन है जिसका नाम रूमा देवी, काफ़ी फेमस हुई, वो केबीसी में भी आई हुई है, एंड in 4-5 days before in newspaper also her pic was there, and she started handicraft work with the organizing self help group. मीन्स उसने 5-7 लेडीज को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या है थोड़े थोड़े पैसे बचाए और सेकंड हैंड जैसे स्विंग मशीन खरीदी और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स आने लगे, काम बढ़ता गया, मनी बढ़ती गई. फिर उनके बाद वो उनका काम बढ़ा तो वो लोग इतने एलिजिबल हो गए कि बैंक से लोन मिलने लगा इनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के नाम से. तो बैंक से लोन लेके उन्होंने और अपना मटेरियल खरीदा. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं तो उससे वो क्या है डिफरेंट टाइप, मीन्स जिस टाइप का वो काम कर रहे हैं. अगर हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो उनको हैंडीक्राफ्ट के लिए जो भी हैंडलूम चाहिए, मशीन्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो चीज़ें परचेज करेंगे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स. सो जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं सेविंग के, कितनी सेव करना है, लोन एक्टिविटीज़ है, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, ग्रुप मेंबर्स के. द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड्स द लोन. सो जो ग्रुप है
वही क्या है डिसाइड करेगा लोन्स के बारे में, ठीक है। मीन्स क्या उन लोगों को सेविंग करनी है, उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कितनी ज़्यादा सेविंग की ज़रूरत है, या उन्होंने लोन लेना है तो कितनी उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारी जो डिसीजन है वो क्या है ग्रुप मेंबर के द्वारा लिए जाते हैं। ओके, सो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का this bank is one of the biggest success story in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rate, कि reasonable rate पे लोगों से क्या है वो लोग पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। स्टार्टिंग इन द 1970s एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट, और उन्होंने 1970s में क्या है स्मॉल प्रोजेक्ट के नाम पे स्टार्ट किया था। ग्रामीण बैंक नाउ हैज ओवर 6 million borrowers in about 40,000 villages spread across बांग्लादेश। जो बैंक है उसके पास अभी क्या है 6 million borrower है 40,000 विलेजेस में, जो कि फैल चुकी है इसकी ब्रांचेस। ऑलमोस्ट all of the borrowers are women and belongs to poor section of the society, और उनमें क्या है ज़्यादातर है वो वीमेन है कि वो अपने मतलब स्मॉल लेवल पे छोटे छोटे काम करते हैं। उनको उनके लिए उनको क्या चाहिए पैसे चाहिए, तो वो क्या है जो ग्रामीण बैंक है वो इसी बेस पे काम कर रहा है कि जो पुअर लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है उनको क्या है प्रोवाइड करवा रहा है। दिस बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली आर poor women reliable borrowers but they can start and run a variety of small income generating activities successfully। तो जो बोरोवर है इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो पुअर वीमेन है वो सिर्फ क्या है कि ऐसा नहीं है कि रिलायबल बोरोवर है, बट वो अपना काम स्टार्ट करके बहुत सारी वैरायटी जनरेट कर सकती है, किसकी इनकम जनरेट कर सकती है, बहुत सारी variety of small income generating activities। There are different type of activities and by these activities these women can generate income। Okay, so this is one of the story about Grameen Bank of Bangladesh who have started to help the poor people for giving loan at the reasonable or nominal rate of interest। Okay, so in this chapter we have looked at the modern forms of money, that what is money, then what are the form of money like paper money, coin money, okay, check, dd, draft means जो कि dd जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ के या कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म बने तो उनको dd देना पड़ता है, तो उसके थ्रू भी क्या है जो मनी है वो ट्रांसफर हो रही है। दीज आर ऑल्सो टाइप फॉर्म ऑफ मनी। सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम, और वो जो बैंकिंग सिस्टम के साथ जैसे चेक लेना है, एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो सारी बैंकिंग के साथ कैसे जुड़ी होती है। ऑन वन साइड आर द डिपॉजिटर हु कीप देयर मनी इन द बैंक एंड ऑन द अदर साइड आर द बोरोवर हु टेक लोन फ्रॉम दिस बैंक। वन साइड क्या है, कैसे बैंक लोन क्रिएट करते हैं, अर्ली वी डिस्कस दैट दिस इज ए बैंक एंड there one is depositor who deposit his money in bank and bank kept 10%, means a person is depositing 1,000 rupees, the bank will kept 100 rupees as a cash or reserve with himself, and 900 rupees he will give loan to the borrowers or the person who need money or who take loan from the bank। Okay, so economic activity require loans or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situation make the borrowers worse off। So no doubt credit also having positive impact, as we saw that because of credit there is investment in the economy and there is also capital formation, means money है, income है, वो generate होती है। But if there are more credit on the borrowers then it can make the situation worse। Okay, so credit is available from a variety of sources. These can be either formal source, we have discussed about the formal sources of credit, informal sources of credit. Terms of credit vary substantially between formal and informal lenders। Okay, depending on the situations or the people that some people who have security or guarantee, or they have
land means small landlords type people, they used to take a loan from bank because they can give paper of their land to the bank as a guarantee. But the poor people who are not able to give any guarantee to the bank, they usually take loan from the informal sources or informal lenders. At present it is the richer household who receive credit from formal. richer में जो रिच लोग हैं अभी के टाइम में वो क्या है, ज़्यादा बैंक से पैसे लेते हैं बिकॉज they have income to give rate of interest and also they have guarantee or security to give to the loan. So usually bank give loan to the people who have guarantee. Okay, so who receive credit from formal sources where the poor have to depend on the informal sources. It is essential that the total formal sector credit increase so that the dependence on the more एक्सपेंसिव इनफॉर्मल क्रेडिट बिकम लेस. कहते जो फॉर्मल सेक्टर है उसका क्रेडिट है, लोन एक्टिविटीज है, उनको इंक्रीज करना चाहिए ताकि जो लोगों की डिपेंडेंसी है इनफॉर्मल सेक्टर पे और वो ज़्यादा महंगा भी होता है बिकॉज मनी लैंडर्स गिव लोन एट ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो वो कम हो जाए. द पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन फ्रॉम द बैंक, cooperative society etc. both these chap are important for development. So जो poor लोग हैं they will get much greater share from formal loan from bank or cooperative society. So they whenever they pay loan back to the bank, so there is rate of interest is less compared to informal sector. Okay, so it is very important for the development of economy, or we can say for the development of a nation. Okay, because whenever people are taking loan from the informal sector, then what happen, the rate of interest is very high and the poor people are not able to give rate of interest only. So what happen, they go in a debt trap. Okay, so it become a very rough situation for the poor people taking loan from the informal sector. Okay, so students, chapter is over. This is about credit, chapter 3rd, credit and money. So read the chapter and also watch the video. If you have any doubt, any query, you are free to ask. Thank you. In the next video we will do question answer related to this chapter. Okay, thank you.